ପିଲାମାନେ ବୁକ୍ସ ଟପିକରେ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ। ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ବ୍ରିଟିଶ ଆର୍ଥିକ ନୀତି ଓ ଭାରତରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ। ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ନୀତି କିପରି ଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଭାରତ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପକାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ କ'ଣ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା। ଯେପରିକି ଏହି ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ଦୋବସ୍ତର ପ୍ରଚଳନ, 1866 ମସିହାରେ 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଭୟାବହତା, ଭାରତରେ ଆଧୁନିକ ଶିଳ୍ପର ଆରମ୍ଭ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଓ କାରିଗରୀ ଶିଳ୍ପର ବିଲୟ ପଛର କାରଣ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତ ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ। କୃଷି ଓ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ ଆମର କୃଷି ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ଆର୍ଥିକ ନୀତି ଯୋଗୁଁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ଭାରତର ରାଜନୀତି ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ସହିତ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜ ଶାସନ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତର ରାଜନୀତି ଏବଂ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ସହିତ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜ ଶାସନ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଆମର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ପାରମ୍ପରିକ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଥିଲା। ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ବା ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଅଧିବାସୀ ମାନେ କିଛି ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିପାରୁଥିଲେ ବା କିଛି ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଥିଲା। ତ ପାରମ୍ପରିକ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଥିଲେ ବା ସେମାନେ ନିଜେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁନଥିଲେ, ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଥିଲେ। ନିଜର ଚାହିଦା ମତେ ଲୋକ ଖାଦ୍ୟ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ନିଜର ଯେତିକି ଚାହିଦା, ନିଜର ଚାହିଦା ମତେ ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟ ହେଉ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି ସବୁ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ବଜାର ଉପରେ ସେମାନେ ବିଶେଷ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନଥିଲେ। ସେମାନେ ବଜାର ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଏହି ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳତା ଯୋଗୁଁ ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳତା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶକୁ ଏକ ପ୍ରକାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଥିଲା। ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ପରି ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଇଂରେଜ ସରକାର ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭାରତରେ ଶାସନ କଲା ବା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭାରତରେ ଆସିକି ଶାସନ କଲା, ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ପରିକା ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଇଂରେଜ ସରକାର ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ପାଇଁକି ଆମ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲା। ଆମ ଭାରତର ଶାସନ କ୍ଷମତା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ହାତକୁ ଯାଇଥିଲା। ଏଇ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ପରି ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଇଂରେଜ ସରକାର ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ଇଂରେଜ ମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଆମ ଭାରତର ଯେଉଁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଥିଲା ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଭାରତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ତଥା ଔପନିବେଶିକ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା କବଳିତ ହେଲା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ବଳି ପଡ଼ିଲା। ଯେହେତୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ଆମ ଭାରତର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ତ ତାହା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଭାରତର ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ତଥା ଔପନିବେଶିକ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ କବଳିତ ହେଲା। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବଳି ପଡ଼ିଲା। ଭାରତରେ ପୂର୍ବରୁ ଶାସନ କରୁଥିବା ତୁର୍କ ଓ ମୋଗଲ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଥିଲେ। ଭାରତରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ? ତୁର୍କ ଏବଂ ମୋଗଲ ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଏହି ତୁର୍କ ଏବଂ ମୋଗଲ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଲଗା ଥିଲେ। ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଭାରତକୁ ନିଜର ସ୍ଥାୟୀ ବାସସ୍ଥଳୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ଇଂରେଜ ମାନେ ଆମ ଭାରତକୁ ନିଜର ସ୍ଥାୟୀ ବାସସ୍ଥଳୀ ରୂପେ ବା ବାସସ୍ଥାନ ରୂପେ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ଭାରତରୁ ନିରନ୍ତର ଧନ ଶୋଷଣ କରି ସେମାନେ ସର୍ବଦା ନିଜ ଦେଶ ଇଂଲଣ୍ଡର ଔପନିବେଶିକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଭାରତରୁ ଲଗାତାର ବା ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଭାରତରେ ଯେତେ ସବୁ ଧନ ଥିଲା, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ସେ ଧନ ସବୁ ଶୋଷଣ କରି ନିଜ ଦେଶ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡର ଔପନିବେଶିକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି କଥା ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ କେତେ ଧନୀ ଦେଶରେ ପରିଣତ କରିବେ ସେ କଥା ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ସେଥିଲାଗି ଆମ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋହି ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଉଚ୍ଚ ବେତନ ବିଦେଶକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ବେତନ ବା ଉଚ୍ଚ ଦରମା, ଅଧିକ ଦରମା ମିଳୁଥିଲା, ସେଇ ଉଚ୍ଚ ବେତନ ସବୁ ବିଦେଶକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା।
खजना आकार में धन भारत को चली जाऊला खजना आकार में धन आम भारतर धन सब देश को बा इंग्लैंड को चली जाऊला साम्राज्य विस्तार तथा सुरक्षा पाई सेमानंकु भारत रे एक विशाल सैन्य बाहिनी रखा पड़ुला निजर साम्राज्य विस्तार करने तथा निजर सुरक्षा पाई सेमानंकु भारत रे एक विशाल सैन्य बाहिनी रखा पड़ुला जार मोट व्ययभार थिला भारत उपरे जार मोटर व्ययभार क्या ऊपर ना आम भारत उपरे न्यस्त थिला। एहा छड़ा शिल्प विप्लव आरंभ हैला पर सस्तारे भारतरु कंचामाल और खाद्यशस्य आमदानी करागला यापर कौन है ना शिल्प विप्लव आरंभ होता है शिल्प विप्लव हवा फल सस्तारे भारतरु कंचामाल एवं खाद्यशस्य आमदानी करागला और अधिक लाभ रे भारत रे विदेशी सामग्री एवं अधिक लाभ रे भारत रे विदेशी सामग्री बिक्री करागला विदेशी सामग्री गुड़िक सब आसिक आम भारत में चढ़ा दर में बिक्री करागला यही सब आवश्यकता को पूरण करने लगी भारतर स्वावलंबी पारंपरिक अर्थव्यवस्था समर्थ नथिला ये जो आवश्यकता थिला से आवश्यकता को पूरण करने लगी भारत जो स्वावलंबी पारंपरिक आर्थिक व्यवस्था थिला से व्यवस्था को समर्थन नथिला समर्थन कर फल आर्थिक व्यवस्था अमूलचूल परिवर्तन जरूरी हो पड़ा। कृषि व्यवस्था रे परिवर्तन पुणी आम पढ़ा कृषि व्यवस्था उपरे परिवर्तन कृषि और शिल्प उपरे प्रभाव पढ़ले एबे आम पढ़ा कृषि व्यवस्था रे परिवर्तन बा कृषि व्यवस्था रे कौन कौन परिवर्तन आसला से विषय पढ़ा इंग्रेजी अमल रे सरकारी खर्च वृद्धि पाइला इंग्रेजी माने जो शासन करथिले से समय रे सरकारी खर्च वृद्धि पाइला ताकू भरणा करबा सकाशे जमीर आदाय खजना को अनुरूप मात्रा रे वृद्धि करबा आवश्यक है जेहेतु इंग्रेजी शासन काल रे सरकारी खर्च वृद्धि पाइला तो से जो खर्च को भरणा करबा पई बा ताकू सम्मान करने भरणा करने जमीर आदाय खजना को अनुरूप मात्रा रे वृद्धि करागला तो जमीर जो खजना आदाय कराउथला से जमीर खजना को वृद्धि करागला। द्वितीयतः धार्य मुताबक खजना निर्दिष्ट समय रे आदाय हेबा जरूरी हैला द्वितीयतः कौन करागला ना जेतिक समय दियाची बा निर्दिष्ट समय मध्य रे से खजना गुड़िक पैठ करबा जरूरी हैला अन्यथा योजना मते आगतुरा व्यय अटकल करबा संभव नथिला अन्यथा कौन थिला माने योजना मते आगतुरा व्यय अटकल करबा संभव नथिला एही औपनिवेशिक आवश्यकता को दृष्टि रे रखी सरकार नूतन जमी बंदोबस्त मान आरंभ कले फल कृषक और कृषि जमी मध्य संबंध बदली गला सरकार द्वारा नूतन जमी बंदोबस्त मान आरंभ होगा फल कृषक एवं कृषि जमी मध्य कौन ना संबंध बदली गला चिरस्थायी बंदोबस्त और जमीदारी प्रथा 1793 मसीह भारतर गवर्नर जेनेराल लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगरे चिरस्थायी बंदोबस्त लागू कले तो 1793 मसीह भारतर गवर्नर किए थे ना जेनेराल लॉर्ड कॉर्नवालिस से कौन कले ना बंगरे चिरस्थायी बंदोबस्त लागू करथिले एही बंदोबस्त अनुଯାयी जमी उपरे खजना स्थायी रूप से धार्य हैला ए चिरस्थायी बंदोबस्त अनुଯାयी जमी उपरे खजना स्थायी रूप से धार्य हैला एवं ताकू सरकार पक्षर जमीदार आदाय करिवे बोली स्थिर हैला एवं जो से खजना जो लागू हैला ताकू जमीदार आदाय करिवे बोली स्थिर करागला धार्य मते एक निर्दिष्ट तिथि रे बा ता पूर्वरु जदि जमीदार खजना को सरकारी तहबिल रे जमा न करिवे सूर्यास्त आईन बल रे तांको जमीदारी उच्छेद हेबो बोली नियम करागला पुणी कौन नियम करथिला जे जमीदार जेतिकी निर्दिष्ट समय जो धार्य करा जाय से निर्दिष्ट समय भितर बा तार पूर्वरु जदि जमीदार खजना सरकारी को तहबिल जदि जमा न करिवे ताहले केउ आईन बल रे तांकर जमीदारी उच्छेद हेबो ना सूर्यास्त आईन बल रे से जमीदारी मानकर आईन उच्छेद हब बोली नियम करागला नियम कड़ाकड़ी भाव पालित हेबारु अनेक जमीदारी उच्छेद हैला जेहेतु नियमटी कड़ाकड़ी भाव में पालित हैला तो पालित हेबारु अनेक जमीदारी उच्छेद
କରାଗଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ଜମିଦାର ମାନେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଜମିଦାରୀକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ଜମିଦାର ମାନେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ପୁଣି ଅନେକ ଜମିଦାର ଉଚ୍ଛେଦ ଭୟରେ ସମୟ ପୂରିବା ଆଗରୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଖଜଣା ଅସୁଲ କଲେ। ପୁଣି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜମିଦାର ମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସମୟ ହେବା ଆଗରୁ, ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ହେବା ଆଗରୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଖଜଣା ଆଦାୟ କଲେ। ଖଜଣା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଜା ହୁଏତ ଅଧିକ ସୁଧରେ ଗାଁ ମହାଜନ ଠାରୁ ଋଣ ନେଲେ। ଯେହେତୁ ଖଜଣା ପୈଠ କରିବା ପାଇଁ, ଜମିଦାର ପାଖରେ ଖଜଣା ପୈଠ କରିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଅଧିକ ସୁଧରେ ଗାଁର ମହାଜନ ଥାନ୍ତି, ସେ ମହାଜନଙ୍କ ପାଖରୁ କ'ଣ କଲେ ଋଣ ନେଲେ। ଅଥବା ଖଜଣା ଦେଇ ନ ପାରି ଜମିହୀନ ହେଲେ, ଅଥବା ଜମିର ଖଜଣା ନ ଦେଇପାରି ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ କ'ଣ ହେଲେ ନା ଜମିହୀନ ହୋଇଗଲେ। ପୁଣି ଅନେକ ସମୟରେ ଋଣ ଓ ସୁଧର ପରିମାଣ ଅତ୍ୟଧିକ ହେବାରୁ ତାର ଜମି ବାଜ୍ୟାପ୍ତ ହେଲା। ଅଧିକ ଋଣ ଏବଂ ସୁଧର ପରିମାଣ ଅଧିକ ହେବାରୁ ସେ କ'ଣ ଋଣ ଆଉ ସୁଧ ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ ବା ପୈଠ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ଫଳରେ ତାର ଜମିଟି ବାଜ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଣିକି ଜମି କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ହେଲା ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଜା ଜମିହୀନ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଏଣିକି କ'ଣ ହେଲା, ଜମି କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ଚାଲିଲା ବା କିଣାବିକା ଚାଲିଲା ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଜା ଯିଏ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲେ ନା ଜମିହୀନ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ରୟତରୀ ବା ଅସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ। ମାଡ୍ରାସ ଓ ବମ୍ବେରେ ସରକାର ସାର୍ ଟମାସ ମୁନରୋଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୟତରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମାଡ୍ରାସ ଏବଂ ବମ୍ବେର ସରକାର କିଏ ଥିଲେ ନା ସାର୍ ଟମାସ ମୁନରୋ। ତ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ରୟତରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ରୟତ ବା ପ୍ରଜା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସରକାରୀ ତହବିଲରେ ଖଜଣା ଜମା କଲେ। ରୟତ କାହା କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏଥିରେ ରୟତ ବା ପ୍ରଜା ମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କ'ଣ କଲେ ନା ସରକାରୀ ତହବିଲରେ ଖଜଣା ଜମା କଲେ। ଏହି ବନ୍ଦୋବସ୍ତରେ ପ୍ରତି 20 ବା 30 ବର୍ଷରେ ଖଜଣା ସ୍ଥିର ହେବ ବୋଲି ନିୟମ ରହିଲା। ଏହି ରୟତରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତରେ ପ୍ରତି 20 ବା 30 ବର୍ଷରେ ଖଜଣା ସ୍ଥିର ହେବ ବୋଲି ନିୟମ ରହିଲା। ଜମିଦାର ନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ନିଜେ ସରକାର ଜମିଦାର ପରି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଖଜଣା ଅସୁଲ କଲେ। ଯେହେତୁ ଜମିର ଜମିଦାର ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସରକାର କ'ଣ କଲେ ନା କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଖଜଣା ଅସୁଲ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ବଙ୍ଗ ପରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜା ଅଧିକ ସୁଧରେ ଋଣ କରି ଖଜଣା ଜମା ନ କରିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମହାଜନଙ୍କ ଋଣ ଜାଲରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଜାମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ବଙ୍ଗରେ ଯେପରି ପ୍ରଜାମାନେ ମହାଜନ ଠାରୁ ଋଣ ଆଣୁଥିଲେ, ଋଣକୁ ସୁଝି ନ ପାରି ବା ସେମାନେ ଖଜଣା ନ ଦେଇପାରି ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଜମି ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରିଯାଉଥିଲେ। ତ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କ'ଣ ହେଲା ନା ପ୍ରଜାମାନେ ଅଧିକ ସୁଧରେ ଋଣ କରି ଖଜଣା ଜମା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମହାଜନ ଋଣ ଜାଲରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ମହାଜନଙ୍କର କ'ଣ ଋଣ ଭାରରେ ସେମାନେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲେ। ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଜମି ହରାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଥିଲା। ମାହାଲୱାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କ'ଣ? ପଞ୍ଜାବ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ମାହାଲ ବା ଗ୍ରାମ ଜରିଆରେ ଖଜଣା ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ପଞ୍ଜାବ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ମାହାଲ ବା ଗ୍ରାମ ଜରିଆରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଖଜଣା ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ମାହାଲ ସହିତ ସରକାରଙ୍କ ଜମି ଜମା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଚୁକ୍ତି ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ମାହାଲୱାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କୁହାଯାଉଥିଲା। ମାହାଲ ସହିତ ସରକାରଙ୍କର ଜମି ଜମା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଚୁକ୍ତି ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ମାହାଲୱାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ। ଖଜଣା ଆଦାୟ କରିବାରୁ ପ୍ରଜା ଉପରେ ଗ୍ରାମ ସମାଜ ଖୁବ୍ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ। ଖଜଣା ଆଦାୟ କରିବାରୁ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଉପରେ ଗ୍ରାମ ସମାଜ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଖୁବ୍ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ। ଫଳରେ ଖଜଣା ଜମା କରିବାକୁ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଋଣ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଖଜଣା ଜମା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଋଣ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ମୋଟ କଥା ହେଲା ଯେ ଏହି ନୂତନ ଜମି ଜମା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଯୋଗୁଁ ଜମି ଏଣିକି ଏକ ବିକ୍ରିଲବ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ ହେଲା। ମୋଟ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ଜମି ଜମା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଲାଗୁ ହେଲା, ତ ଏଇ ନୂତନ ଜମି ଜମା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଲାଗୁ ଯୋଗୁଁ ଏଣିକି ଏକ ବିକ୍ରୟଲବ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ ହୋଇଗଲା। କ'ଣ ଜମିଟି ଏକ ବିକ୍ରୟଲବ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ ହୋଇଗଲା ବା ଜମି କିଣାବିକା ଚାଲିଲା। ଖଜଣା ଦେଇ ନ ପାରି ଅଥବା ଖଜଣା ଦେବା ସକାଶେ କରିଥିବା ଋଣ ଓ ସୁଧ ପରିଶୋଧ କରି ନ ପାରି ପ୍ରଜାମାନେ ଜମିହୀନ
खजना देई न पारि अथवा खजना देवा सकाशे करिथिबा ऋण एवं सुध परिशोध न करि पारि प्रजा माने कौन हेले ना जमीहीन होई पड़िले एवं अन्य पक्षरे साहुकार एवं महाजन माने जमीर मालिकाना निज निज नारे करिनेले जेहेतु से माने निजर ऋण सुझी न पारे बा पैसा दे न पारे तेणु साहुकार माने बा जमीदारी माने कौन कले तांको जमी को निज निज नारे करिगले एथि एही नुआ जमी मालिक माने प्रत्यक्ष भावे कृषि करू नथिले अन्य पक्षरे भाग चाष करुथिले जमीहीन प्रजा दारिद्र्य जोगु कृषिर उन्नति करि पारिले नाही एहीपरि भावरे कृषि और कृषकर आर्थिक व्यवस्था दिनकु दिन शोचनीय हेबाकू लागिला कुटीर शिल्पर अवनति तापर कुटीर शिल्पर इरा गला कृषि उपर आमे पढ़िले कृषि क्षेत्र रे किपरि अवनति घटितिला एबे कुटीर शिल्पर अवनति किपरि घटितिला से विषय रे पढ़िबा अष्टादश शताब्दी पर्यंत हस्तशिल्प और कारीगरी पाई भारत विश्व रे प्रसिद्ध थी रहितिला अष्टादश शताब्दी पर्यंत हस्तशिल्प एवं कारीगरी पाई आम भारत विश्व रे प्रसिद्धि लाभ करिथिला हस्तशिल्प रु प्रस्तुत गहना टसर लुगा पशम वस्त्र आदि शौखीन और विलास सामग्री विदेश को मध्य रप्तानी हेउथिला लक्ष लक्ष कारीगर एथिरे नियुक्ति पाउथिले एही कारीगर माने मध्य क्षुद्र चाषी थिले कृषि और कारीगरी उपरे भरोसा करी से माने आत्मनिर्भरशील हेउथिले कृषि एवं कारीगरी उपरे से माने भरोसा करी कहउथिले ना निजे आत्मनिर्भरशील हेउथिले गोवा सूरत ढाका वाराणसी चित्तांगज और लाहौर आदि सहर हस्तशिल्पर मुख्य केन्द्र थिला तो हस्तशिल्पर मुख्य केन्द्र क्या गुड़िक थिला ना गोवा सूरत ढाका वाराणसी चित्तांगज और लाहौर इत्यादि सब हस्तशिल्पर मुख्य क्षेत्र थिला ऊनविंश शताब्दी रे इंग्लैंड रे शिल्प विप्लव आरंभ हैला ऊनविंश शताब्दी रे इंग्लैंड रे कहला ना शिल्प विप्लव आरंभ हैला परे भारत रु कला तयारी लुगा और अन्यान्य मेसिन प्रस्तुत विदेशी सामग्री सस्ता रे किनिबाकू मिलिला निज शिल्पर विकास पाई इंग्रेज सरकार मध्य विदेशी सामग्री आमदानी उपरे वाणिज्य शुल्क छाड़ कले तो निज देशर विकास पाई इंग्रेज माने निज देशर विकास करबा पाई इंग्रेज सरकार मध्य विदेशी सामग्री आमदानी उपरे कौन कले ना वाणिज्यर शुल्क छाड़ करिथिले पुणी पाश्चात्य संस्कृतिर प्रभाव रे लोक पारिवारिक हस्तशिल्प प्रस्तुत स्वदेशी वस्तु को नापसंद कले पाश्चात्य संस्कृतिर प्रभाव रे लोक माने कौन कले ना निजर पारिवारिक हस्तशिल्प बा स्वदेशी वस्तु को कौन करथिले नापसंद करथिले किंतु विदेशी वस्तु को पसंद करथिले हस्तशिल्पर अधपतन जोगु कारीगरी माने कृषि उपर निर्भर कले हस्तशिल्पर जो अधपतन आरंभ है फल से कारीगर माने कौन कले ना कृषि उपर निर्भर कले जदिओ कृषि खूब अनुन्नत अवस्था रही जदि भी ए कृषि कार्य खूब अनुन्नत बेसी उन्नत अवस्था न था कि अनुन्नत अवस्था रही अनेक कारीगर पुणी दिन मजुरिया भाव में दिन काटिले अनेक कारीगर कौन कले ना दिन मजुरिया भाव में श्रमिक भाव में दिन काटिले एही कारणरू देश रे दारिद्र्य वृद्धि पाइला और आर्थिक स्थिति शोचनीय होईगला दुर्भिक्षरे लक्ष लक्ष संख्यार लोक पोक माछी भली अन्नाहार रे मले दुर्भिक्षरे कहले लक्ष लक्ष लोक अन्नाहार रे खाइबा को न पाइकी अन्नाहार रे मले यह पछर बड़ कारण थिला 1866 मसीह 9 अंक दुर्भिक्ष एटा होची 9 अंक दुर्भिक्ष एठरे लोक अन्नाहार रे मरुथिले बा किछि खाइबा को न पाइकी एही परि अवस्था रे लोक माने मृत्युवरण करुथिले 9 अंक दुर्भिक्ष रे ओडिसा रे 10 लाख रु अधिक लोक मरिबार अनुमान करा जिछि आम ओडिसा रे मध्य 9 अंक दुर्भिक्ष समय रे 10 लाख रु अधिक लोक मरिबार अनुमान करा जाइछि विंश शताब्दी रे आधुनिक शिल्पर विकास विंश शताब्दी रे आधुनिक शिल्पर विकास होइथिला तुमे जानिछ कि पुरी राजा दिव्य सिंह देवंक राजत्व नवम अंक रे देखा जाई थिबारु 1866 मसीह रे ओडिसा दुर्भिक्ष को 9 अंक दुर्भिक्ष कहा जाउथिला ए 9 अंक दुर्भिक्ष कांगी कहा जाउथिला ना पुरी रे राजा जे थिले दिव्य सिंह देव तांको राजत्व नवम अंक रे देखा जाइथिला तांको राजत्व कोन ना नवम अंक रे देखा जाइथिला सेथिपाई 1866 मसीह ओडिशार दुर्भिक्ष को 9 अंक दुर्भिक्ष बोली कहा जाउथिला विंश शताब्दी रे आधुनिक शिल्पर विकास ऊनविंश शताब्दी प्रारंभ रे जेतेबेले इंग्लैंड रे शिल्प विप्लव आरंभ हैला सेतेबेले भारत को केतेक केवल एक कंचा माल उत्स बा शिल्पजात सामग्री बजार रूपे इंग्रेज माने देखुथिले
ऊनविंश शताब्दीर आरंभ में जितेबाला कौन है ना इंग्लैंड शिल्प विप्लव आरंभ होता से समय भारत को केवल एक कंचामाल उत्स बा शिल्पजात सामग्रीर बजार रूपे इंग्रेजी माने भारत को देखुले। मात्र 1850 मसीहा पर भारत में कपा झोट और पत्थर कोईला क्षेत्र में आधुनिक शिल्पायन आरंभ होता। 1850 मसीहा पर आम भारत में कपा झोट और पत्थर कोईला क्षेत्र में आधुनिक शिल्पायन आरंभ है। यही कल कारखाना हजार हजार श्रमिक नियुक्त हेले। यही कल कारखाना कौन ना हजार हजार श्रमिक नियुक्त हेले। जदिओ दारिद्र्य कषण भोगुथिबा मोट बेकारी संख्या ढेर अधिक थिला, भारतर प्रथम लुगाकल 1853 मसीह बम्बे ठारे स्थापित होइथिला। एटा मन रखिबा पिला माने आम भारत रे प्रथम लुगाकल 1853 मसीह एवं बम्बे ठारे स्थापित होइथिला। 2 वर्ष पर 1855 मसीह बंगर रिसरा ठारे प्रथम झोटकल स्थापित होइथिला। तो 1853 मसीह बम्बे ठारे लुगाकल स्थापित होता है। 1853 अर्थात 2 वर्ष पर 1855 मसीह बंगर रिसरा ठारे बंगदेशर रिसरा ठारे प्रथम झोटकल स्थापित है। उभय लुगा और झोटकल संख्या दिनकू दिन वृद्धि पाइला। झोटकल मुख्यतः बंगरे एवं लुगाकल महाराष्ट्र गुजरात रहिला। झोटकल मुख्यतः आमर बंगरे रहिथिबा बेले लुगाकल महाराष्ट्र एवं गुजरात रे रहिथिला। 1915 मसीहा बेलू देश में सर्वमोट 206 लुगाकल बसी सारी तहिरे काम करुथिबा श्रमिकों संख्या थिला प्राय 2 लाख एवं से लुगाकल जो लोक मैंने काम करुथिले श्रमिकों संख्या केते थिला ना 2 लाख थिला। सेहीपरि 1901 मसीह मोट 36 झोटकल 1 लाख ऊर्ध्व श्रमिक नियुक्ति पाई। 1901 मसीह मोट 36 झोटकल थिला एवं से झोटकल श्रमिक मान संख्या 1 लाख अधिक थिला। एही समय रे कोयला खनि रे मध्य प्राय लक्ष्य श्रमिक काम करुथिले। से समय रे मध्य कोयला खनि निर्माण होइतिला। तो कोयला खनि रे मध्य प्राय लक्ष्य श्रमिक काम करुथिले। एहा छडा चीनी चमड़ा लौह और इस्पात सीमेंट आदि तैयारी पाई नुआ कारखाना मान बसी थिला। भारी यंत्र आधारित कारखाना को बाद देले एही समय रे चा कॉफी और नीलचाषर बगीचा उद्योग मध्य आरंभ हैला। चा बगीचा मुख्यतः आसाम और बंगर दार्जिलिंग अंचल रे रहितिला। एहा छडा कौन ना भारी यंत्रपाती आधारित कारखाना को बाद देले जोड़ा सब भारी यंत्रपाती जो कारखाना थिले ताकू बाद दे कि मध्य ए समय रे चा कॉफी एवं नीलचाषर बगीचा उद्योग आरंभ होइतिला। चा बगीचा रे मुख्यतः आसाम और बंगर दार्जिलिंग अंचल रहितिला एवं कॉफी बगीचा रे दक्षिण भारत रे एवं नीलचाष बिहार और बंगरे आरंभ होइतिला। चा कॉफी और नीलचाषर यूरोप बाजार रे खूब चाहिदा रहितिला। चा कॉफी एवं नीलर यूरोप बाजार रे कहतिला ना खूब चाहिदा रहितिला। एही उद्योगर मालिकाना यूरोपीय मानक हाथ रे रहितिला। नीलचाषी ऊपर खूब अत्याचार करा जाउथिला। जेहेतु यही उद्योगर मालिकाना यूरोपीय मानक हाथ में रही बेले जो माने नीलचाषी थिले से नीलचाषी मानक ऊपर खूब अत्याचार करा जाउथिला। चा और कॉफी बजार चा और कॉफी बगीचार कुलीर पाउना खूब कम थिला। चा एवं कॉफी बगीचार जो सब कुली थिले से कुली मानकर पाउना खूब कम थिला। काम करने को बाध्य करी सेमानक ऊपर शारीरिक अत्याचार मध्य करा जाउथिला। काम करने को सेमानक बाध्य करी से कुली मानक ऊपर शारीरिक अत्याचार करुथिले। इंग्रेजी मानक सरकार थिबारु अत्याचारी बगीचा मालिक बा साहेब मानक ऊपर क्वचित कार्यानुष्ठान हेउतिला। जेतु इंग्रेजी माने सरकार थिले तो सेथि पई अत्याचारी बगीचा बा मालिक बगीचा मालिक बा साहेब मानक ऊपर क्वचित कार्यानुष्ठान होउथिला। बस जो माने अत्याचार करथिले से मानक ऊपर खूब कम कार्यानुष्ठान निया जाउथिला। द्वितीय विश्वयुद्ध 1939 मसीह 1945 मसीहा मध्य से समय रे इंग्लैंड उत्पादित सामग्री यथेष्ट न हेबारु भारत रे अनेक नुआ कल कारखाना स्थापित होइथिला। जेतले द्वितीय विश्वयुद्ध चलथिला तो द्वितीय विश्वयुद्ध समय रे इंग्लैंड उत्पादित सामग्री यथेष्ट न हेबारु भारत रे अनेक नुआ कल कारखाना स्थापित होइथिला।
तथापि देश रे आवश्यक मात्रा रे शिल्प विकास होई नथिला। तथापि आम देश रे बा आम भारत रे आवश्यक मात्रा रे शिल्पर विकास होई नथिला। पारंपरिक हस्तशिल्पर अधपतन पर जिते संख्यक लोक कारीगरी वृत्ति हराइले ता तुलन में नियुक्त पाइथिबा श्रमिकों संख्या अति कम थिला। पारंपरिक हस्तशिल्प जिते अधपतन है क्रमशः लोप पाईगला तापर जिते संख्यक लोक कारीगरी वृत्ति हराई बेकार होइथिले से तुलन में जितकी लोक श्रमिक संख्या नियुक्ति होइथिले सेटा कम थिला। पुणी अधिकांश कारखानार मालिकाना यूरोपीय मानक हाथ थिला। पुणी अधिकांश कारखानार मालिकाना यूरोपीय मानक हाथ थिला। श्रमिक को मजूरी कम मिलुथिला एवं अधिक काम करने को पड़ुथिला। से श्रमिक मानक कम मजूरी एवं काम अधिक करने को पड़ुथिला। तेणु श्रमिकों मध्य एकता भाव सृष्टि हैला जहाँ जातीय आंदोलन को साहाय्य कला। तेणु श्रमिक मानक मध्य एकता भाव सृष्टि है जहाँकि आम जातीय आंदोलन को साहाय्य करिथिला। जे अल्प संख्यक भारतीय शिल्पपति सृष्टि हेले सेमाने मध्य इंग्रेज शिल्पपति द्वारा उपेक्षित हेले। जो आम भारत में जो अल्प संख्यक शिल्पपति सृष्टि होते सेमाने कहले ना इंग्रेज शिल्पपति द्वारा कौन थे ना उपेक्षित होइथिले। फल जातीय आंदोलन को सेमानकर सहयोग रहिला। फल कहले ना आम जातीय आंदोलन को सेमानकर मध्य सहयोग रहितिला। मोट कथा हैला इंग्रेज शासन रे भारत आर्थिक व्यवस्था रे घोर परिवर्तन परिलक्षित होइतिला। मोटामोटी आम कहबा को गले इंग्रेज जिते शासन करथिले इंग्रेज शासन रे भारत आर्थिक अवस्था रे घोर परिवर्तन परिलक्षित होइतिला। पारंपरिक आर्थिक व्यवस्था बदल एक नुआ आर्थिक व्यवस्था आरंभ हैला। पारंपरिक शिल्प और कारीगरी शिल्पर अधपतन है एवं नुआ शिल्प मान प्रतिष्ठित होता। पारंपरिक शिल्प एवं कारीगरी शिल्पर अधपतन पर नुआ शिल्प मान प्रतिष्ठा होता। किंतु जो व्यापक संख्यार कारीगर बेकार हेले ता तुलन में अति अल्प लोक नुआ शिल्प श्रमिक भाव में नियुक्ति मिला। कृषि क्षेत्र में नुआ जमी बंदोबस्त जो अनेक प्रजा जमीहीन हेले एवं नुआ जमी मालिक कृषि उन्नति करने आवश्यक पदक्षेप नेले नहीं। एही दृष्टि देखिले इंग्रेज शासन समय भारत आर्थिक व्यवस्था औपनिवेशिक हो रहिला। यह विशेष भाव में आधुनिक और उन्नत हो पारिला नहीं। तो यहाँ आमर थिला चैप्टर 4 आमर एटा थिला ब्रिटिश आर्थिक नीति और भारत रे एहार प्रभाव। ए विषय आम पढ़िले या परे आम परवर्ती विषय चैप्टर 5 पढ़िबा बा पंचम अध्याय चैप्टर 5 आम पढ़िबा भारत रे जातीयतावादी आंदोलन। चैप्टर 5 रे आम कौन पढ़िबा ना भारत रे जातीयतावादी आंदोलन।